Hello everyone. So this is the last session of NEET Express Course B. So today we are going to discuss the plant growth and development chapter. This is the last chapter of plant physiology of class 11th. Plant growth and development. Plant, हम लोगों को पता है what are plants? Plants, we studied about plants in the plant kingdom chapter. They are the eukaryotic organisms wherein the cells are surrounded by cellulosic cell wall. They are autotrophic, can synthesize their own food using the energy from the sun, carbon dioxide and water. They are photosynthetic. Growth. Growth is basically increase in size and mass of the cells, number and mass of the cells. So growth is an irreversible process. It can be extrinsic, it can be intrinsic. We studied this in the living world chapter. Development is sum total of growth and differentiation. We are going to discuss all these concepts in detail in this chapter. So let's begin with our chapter, plant growth and development. Development is sum of the growth and differentiation. Growth, I just told you, it is increase in mass and number of cells. Differentiation अभी हमने डिस्कस किया था, अनाटमी चैप्टर में डिस्कस किया है. डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करना बंद कर दें और एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें, सो दे आर डिफ्रेंशिएटेड. ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड, कि वो अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो जब सेल्स नंबर और साइज में इंक्रीज हो रहे हैं, मास में इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, फिर वो डिवाइड करना बंद करके डिफ्रेंशिएट कर जाएं, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं डेवलपमेंट. ओके. Growth is a characteristic feature of life. Why? Because growth में extrinsic और intrinsic growth दोनों आता है. Intrinsic growth सिर्फ living organisms में होता है, non-living things में नहीं होता. So intrinsic growth is defining feature of the life. Okay, it is increase. Growth की बात करते हैं तो it is increase in mass and number of cells. Irreversible process है. Extrinsic growth non-living things में होता है. जैसे कि स्नो माउंटेन के ऊपर स्नोफॉल हो गई, स्नो माउंटेन का साइज बढ़ गया, मास बढ़ गया. सैंड ड्यून्स के ऊपर से सैंड आ गई और सैंड आ गई तो सैंड ड्यून का साइज बढ़ गया, मास बढ़ गया. दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ व्हिच इज अकरिंग इन दी नॉन लिविंग थिंग्स. ओके. देन वी हैव इंट्रिंसिक ग्रोथ. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलता है. दैट इज व्हाई इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ग्रोथ अकर्स व्हेन anabolism is more than catabolism. Anabolism is formation of complex compounds. Catabolism is breakdown of complex compound into simpler compounds. तो जब ज़्यादा complex compounds बनेंगे और complex compounds का breakdown comparatively कम होगा तो organism के अंदर growth देखने को मिलेगी. Moving ahead. Plant growth is indeterminate. Plants के अंदर growth fixed नहीं होती कि अब इतने साल का प्लांट हो गया, इतने years प्लांट की एज हो गई, प्लांट की ग्रोथ इतनी होगी. It's not fixed. Why? Because plants के अंदर meristematic tissue होते हैं. Meristematic tissue are continuously dividing cells. So in plants, unlimited growth takes place. Growth occurs throughout the life of the plant. पूरी टाइम प्लांट के अंदर लाइफ में ग्रोथ होती रहती है. It is due to the presence of meristematic tissue. Meristematic tissue के बारे में हमने anatomy chapter में डिस्कस किया था. That is, it is continuously dividing tissue. Meristematic tissue में you have root apical meristem जो root के apex पे present है, root के tip पर present है, and you have shoot apical meristem जो शूट के टिप पे प्रेजेंट है. ग्रोथ इन प्लांट्स दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ इज ग्रोथ इन लेंथ.
Secondary growth is growth in girth. इनिशियली जब आप सीड सो करोगे उसमें से सीडलिंग निकलेगी, छोटा सा प्लांट निकलेगा, वो लेंथ में ग्रो करेगा। एक पर्टिकुलर लेंथ बढ़ने के बाद फिर वो गर्थ में ग्रो करेगा। तो जब लेंथ में ग्रो कर रहा है तो इट इज प्राइमरी ग्रोथ, ये पहले होती है। जब गर्थ में ग्रो कर रहा है तो इट इज सेकेंडरी ग्रोथ, ये बाद में होती है। प्लांट के अंदर ग्रोथ के 3 फेजेस हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। सेल्स डिवाइड करेंगे, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ऑर्गेनल्स डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग फेज है। जब सेल्स डिवाइड हो चुके होते हैं तो उसके बाद वो एंटर करते हैं फेज ऑफ एलोंगेशन में, इनलार्जमेंट में। अब सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा, एक पर्टिकुलर शेप अटेन करेगा। जब वो साइज और शेप अटेन कर चुका होता है फिर वो एंटर कर जाएगा फेज ऑफ मैच्योरेशन में। अब वो मैच्योर होगा और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। सो मेरिस्टेमेटिक फेज और फेज ऑफ सेल डिविजन में सेल डिवाइड करते हैं। जो सेल्स अब डिवाइड कर चुके हैं फिर वो एलोंगेशन फेज या फेज ऑफ एनलार्जमेंट में एंटर करते हैं और वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर शेप अटेन करते हैं, एक पर्टिकुलर साइज अटेन करते हैं। एंड देन वो सेल्स, elongated cells, enlarged cells, enter the phase of differentiation or maturation, wherein they start performing a particular function. Okay. So meristematic phase में cell division takes place, cell divide कर रहा है। यहाँ पर जो cells होते हैं meristematic हैं, तो meristematic tissue वाले सारे features show करेंगे। They will have dense protoplasm, prominent nucleus, वैक्यूल नहीं होगा यहाँ पे, लार्ज न्यूक्लियस, थिन सेल वॉल होगा इनका, ठीक है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं बार बार। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, इनका रेस्पिरेटरी रेट हाई होगा। इलॉन्गेशन फेज में सेल एनलार्ज करेगा इन साइज, इसमें वैक्यूलेशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ वैक्यूल्स बढ़ेंगे, वैक्यूल्स का साइज बढ़ेगा जिसकी वजह से सेल एनलार्ज करेगा। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होती है तो सेकेंडरी सेल वॉल आता है, सेल वॉल में थिकनिंग आनी शुरू हो जाती है इस फेज में। फिर आता है आपका डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन फेज। यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर एलोंगेशन, जब एक बार सेल एलोंगेट हो गया, एक बार सेल एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया, एलोंगेट हो गया है, पर्टिकुलर साइज उसने अटेन कर लिया है, तो अब ये स्पेशलाइज होगा, डिफरेंशिएट होगा टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल, अब अगर जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसे ट्रैकीज बनना है, जाइलम पैरेन्काइमा बनना है, कॉलिन्काइमा बनना है, पैरेन्काइमा बनना है, स्क्लेरेन्काइमा बनना है, तो वो एक स्ट्रक्चरल शेप लेगा वैसा। फिजियोलॉजिकल, अब वो ट्रैकीज का काम है पानी को कंडक्ट करना, वाटर को कंडक्ट करना, पैरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करना, कॉलिन्काइमा थिकनिंग की वजह से सॉफ्ट टिश्यू में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो हर किसी का अलग अलग फंक्शन है। इलास्टिक टिश्यू होता है कॉलिन्काइमा। तो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन यहाँ पर होती है। प्रॉपर शेप अटेन करना, सेल लार्ज था, अब प्रॉपर शेप अटेन करेगा और फिर वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। देन वी हैव द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, इट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ हमने पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है, आपने एक सीड को सो करा सॉइल में, अब सीड से सीडलिंग बनेगी, फिर छोटा सा प्लांट बनेगा, छोटे से प्लांट से फिर वो मैच्योर होगा, उसमें फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स के अंदर ओवरी होती है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी जिसके अंदर सीड होगी। प्लांट ओल्ड एज में एंटर करेगा, मैच्योर होने के बाद रिप्रोड्यूस कर चुका है, ओल्ड एज में एंटर करेगा और फिर फाइनली प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो जो सारे स्टेजेस अनेक सीक्वेंस में हो रहे हैं, इन सारे सीक्वेंशियल स्टेजेस को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। इट इज़ द सीक्वेंशियल चेंजेस that occur in the structure and functioning process from seed germination to senescence. आपने सीड को सो किया सॉइल में, सीड जर्मिनेट करती है प्लूम्यूल से। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है, प्लूम्यूल से स्टेम निकलता है, रेडिकल से रूट निकलता है। सीडलिंग बना,
छोटा सा प्लांट बनेगा, फिर वो प्लांट जुवेनाइल फेज में जाएगा, मैच्योर होगा, उसमें फ्लावरिंग होगी, सीड फॉर्मेशन होगा, फाइनली प्लांट ओल्ड एज में एंटर कर जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ये सारे सीक्वेंशियल चेंजेस जो प्लांट में हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, इन सबको एक साथ हम बोलते हैं डेवलपमेंट। मूविंग अहेड, plasticity, a very important topic. Numerous number of times question have been asked from this topic. Plasticity होता क्या है? देखो, नॉर्मली प्लांट ना एक पाथवे फॉलो कर रहा है कि मुझे ऐसे लीव्स बनानी है, इस तरह का मेरा ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो प्लांट सिक्वेंशियल पाथवे फॉलो करता है। बट कई बार प्लांट ना एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में होता है, या आप कह सकते हो कुछ उसमें जो चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो उस पाथवे से थोड़ा सा डेविएट होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे एंड प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से प्लांट ने अपने अंदर एक और कोई और पाथवे फॉलो करने की जो उसमें एबिलिटी है उसको फॉलो कर लिया, तो इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल है इसका हेट्रोफाइली। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, and phyli means leaves. The same plant is also a heterophyly, which is the example of plasticity. Plasticity दो तरह की हो सकती है हेट्रोफाइली के टर्म्स में। तो हेट्रोफाइली एक ऐसी प्लास्टिसिटी है जो दो तरह की होती है, डेवलपमेंटल और एनवायरमेंटल। डेवलपमेंटल का मतलब है प्लांट के डेवलपमेंटल स्टेजेस में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्लांट है, उस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया जिसकी वजह से प्लांट जब जुवेनाइल होता है, छोटा होता है, बचपन के स्टेज में किसी और तरह की लीव्स बनाता है, और जब वही प्लांट मैच्योर हो जाता है तो वो उसकी लीव्स का शेप चेंज हो जाता है। दिस इज डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली, मतलब प्लांट की डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टेजेस में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से अलग स्टेज पे अलग टाइप ऑफ, अलग शेप ऑफ लीव्स बन रहा है। एनवायरमेंटल हेट्रोफाइली इज हैबिटेट। एक प्लांट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में किसी और तरह की लीव्स बना रहा है और एक्वेटिक हैबिटेट में किसी और तरह की लीव्स बना रहा है, इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल और हैबिटेट हेट्रोफाइली। डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली इज शेप वैरीज इन जुवेनाइल एंड मैच्योर फेज। कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर आर द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली। ये तीन प्लांट्स ऐसे एग्जांपल्स हैं जो डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली शो करते हैं। एनवायरमेंटल और हैबिटेट हेट्रोफाइली मैंने अभी आपको बताया कि शेप वैरीज इन एयर एंड वाटर, मतलब अगर प्लांट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में है तो वो किसी और तरह की लीव्स की शेप बनाएगा, और अगर वही सेम प्लांट एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है तो वहाँ लीव्स की शेप वैरी करेंगी। बटरकप एक ऐसा प्लांट है जिसमें एनवायरमेंटल हेट्रोफाइली देखने को मिलता है। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स। There are certain hormones which promote the growth, जो प्लांट के अंदर ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, एंड there are certain plant hormones which inhibits the growth, ग्रोथ को रोक रहे हैं, उसे कम कर रहे हैं। So these plant hormones which are basically involved in regulating the growth, either promoting or inhibiting, are called as plant growth regulators or plant hormones or phytohormones. Plant hormones, plant phyto का मतलब भी होता है plant, so phytohormones. Plant growth regulators abbreviated as PGRs, plant hormones or phytohormones. They are the chemical compounds which are found in very small amount. Plant के अंदर बहुत ही small amount में मिलते हैं। These compounds are synthesized naturally in the plant. Plant के अंदर naturally ये बनते हैं। They are organic molecules, they are organic material, ठीक है? And they control the growth of the plant. They regulate the growth of the plant. They either help in inhibiting the growth of the plant or promoting the growth of the plant. On the basis of whether these hormones are promoting the growth of the plant, they are called as plant growth promoters.
जिसमें वी हैव ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन। अगर प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट कर रहा है फाइटोहार्मोन, so they are called as plant growth inhibitors. In this we have examples like ethylene and abscisic acid. Ethylene is a plant growth regulator which can act as both growth promoter and inhibitor. वो प्लांट की ग्रोथ प्रमोट भी कर सकता है and it can also inhibit the growth of the plant. Okay. Now we are going to discuss about each phytohormone in detail, like how is it isolated, from where it is isolated, how it was discovered, कहाँ पे ये मिलता है हार्मोन, इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है, किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में मेच्योरिटी आती है, चेंजेस आते हैं और ये पर्टिकुलर हार्मोन बनता है, क्या फिजियोलॉजिकल रोल्स प्ले करते हैं ये हार्मोन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोएसे. Bioassay is now not in that detail in the syllabus, so we are going to just mention the names of the bioassay. Bioassay होता क्या है? Bioassay are those tests. It's a type of a test जो हम हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पोटेंसी, उसकी एक्टिविटी, उसका रोल प्लांट में क्या है, उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि प्लांट का ये हार्मोन इस कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट के अंदर क्या रोल प्ले करेगा, इसकी क्या पोटेंसी है, ये क्या रोल प्लांट के अंदर प्ले करता है, उसके क्या फंक्शंस हैं. सो दिस वी अंडरस्टैंड विद द बायोएसे. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीजन फर्स्ट. Oxygen is the first plant hormone to be discovered. चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन उन्हीं के सन हैं. उन दोनों ने ये हार्मोन डिस्कवर किया था इन कॉलियोप्टाइल टिप ऑफ कैनरी ग्रास. ओके, कैनरी ग्रास की कॉलियोप्टाइल टिप में ये इन्होंने डिस्कवर किया था. अब कॉलियोप्टाइल क्या होता है? ये तो डाइकॉट हो गया. मोनोकॉट में आपका लेट्स से ये एंडोस्पर्म है, ये आपका प्लूम्यूल है, which give rise to stem. This is radicle, which give rise to root. रेडिकल की कवरिंग को हम बोलते हैं कॉलियोराइजा और प्लूम्यूल की कवरिंग को हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल. ठीक है, दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज आपका एम्ब्रियोनल एक्सेस. ठीक है, सो कॉलियोप्टाइल टिप ऑफ कैनरी ग्रास में दे स्टडीड अबाउट दी ऑक्सीजन हार्मोन. इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने देखा था कॉलियोप्टाइल टिप में जब लाइट पड़ती है तब इट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट. तो ऐसा कुछ हो रहा है, टिप के अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो लाइट पड़ने से स्टिमुलेट हो रहा है, नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है और जिसकी वजह से वो टिप की बेंडिंग करा रहा है टुवर्ड्स लाइट. सो इट परसीव्स लाइट स्टिमुलस एंड बेंड टुवर्ड्स द लाइट. ऑक्सीजन हार्मोन बनता किस मॉलिक्यूल से? इसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन, ये आपको याद रखना है. आइसोलेशन वॉज डन बाय F.W. वेंट, इट्स नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जिन्होंने इसको हार्मोन को आइसोलेट किया था फ्रॉम ओट्स सीडलिंग. ओट्स की सीडलिंग से आइसोलेट किया था. अवीना कर्वेचर टेस्ट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम. अवीना कर्वेचर टेस्ट इज द बायोएसे ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन. Physiological role and applications of oxygen. Oxygen hormone is responsible for apical dominance. Suppose एक plant है, ये उसकी apex है और ये उसकी branches हैं. ठीक है, यहाँ ये उसकी apex है, यहाँ पे ये apex आ गई और यहाँ से उसकी branches arise हो रही हैं. तो I'll just draw it for your reference.
ये एपेक्स है। इस एपेक्स में यू हैव अ हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सिन। ऑक्सिन शो करता है एपिकल डोमिनेंस, तो इसकी वजह से ये एपेक्स डोमिनेट करेगी और ग्रोथ ऐसे होती रहेगी। एपेक्स डोमिनेट करेगी तो ब्रांचिंग यहाँ नहीं होगी। तो अगर आपको इस तरह के प्लांट में ब्रांचिंग करानी है तो आपको एपेक्स को कट करना पड़ेगा। तो आपने ऑक्सिन वहां से हटा दिया, अब आपकी ब्रांचिंग शुरू हो सकती है। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। ओके, ऑक्सिन रूट इनिशिएशन भी कराता है, रूट को इनिशिएट करने में, रूट रेडिकल से रूट अराइज हो, इसमें हेल्प करता है। इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के प्लांट के अंदर फ्लावरिंग भी प्रमोट ऑक्सिन कराता है। प्लांट के अंदर फ्रूट का ड्रॉप, लीफ का ड्रॉप जल्दी ना हो, अर्ली स्टेज पे ना हो, इस बारे का इसका कंट्रोल ऑक्सिन रखता है। एंड जब प्लांट मैच्योर हो जाए तो फ्रूट का ड्रॉप एंड लीफ का ड्रॉप भी ऑक्सिन कराता है। तो एब्सेशन को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स fruit and leaf drop at early stage and promotes fruit and leaf drop at senescence. ओल्ड एज में जब प्लांट ओल्ड एज में पहुंच जाएगा तो उसी फ्रूट और लीफ का फॉल ऑफ भी ऑक्सीजन कराएगा। इट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज। टोमेटोज को सीडलेस बनाने में ऑक्सीजन हेल्प करता है। 2,4-D used as herbicide, weedicide that kill dicot weeds and not monocots weed. 2,4-D is a type of an oxime 2-chloro-difluorophenoxy acid. 2,4-D is an example of oxime 2,4-dichloro-diphenoxy acetic acid. It is used as herbicide or weedicide that kill dicot weeds and not monocot weeds. तो monocot weeds पे ये act नहीं करता, dicot weeds पे act करता है। Xylem differentiation कराता है, xylem के अलग अलग components बनेंगे, 4 components हैं, tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers, उसमें भी ऑक्सीजन हेल्प करता है और सेल डिविजन में भी ऑक्सीजन हेल्प करता है। पोटैटो की डॉर्मेंसी को इंक्रीज करता है, पोटैटो को डॉर्मेंट रखता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में हेल्प करता है कि उसमें जर्मिनेशन ना हो। आपने देखा होगा पोटैटो अगर आपके घर पे रखे हुए हैं बहुत लंबे टाइम तक तो वो उसमें से स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाती है। सेम पोटैटोज में जब वो हम क्रॉप फील्ड से रिलीज़ होते हैं, हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें तो उनकी जर्मिनेशन थोड़ा रुक जाएगी और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, तो पोटैटो डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा, ठीक है, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो पोटैटो की डॉर्मेंसी बढ़ाने के लिए भी वी हैव ऑक्सीजन। ओके, द नेक्स्ट हार्मोन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जिब्रेलिन, जिसको हम GA भी बोलते हैं, जिब्रेलिक एसिड। इसकी डिस्कवरी हुई थी जापान में। जापान में देखा गया था कि राइस की सीडलिंग बहुत एक्सेसिवली लंबी ग्रो होती जा रही है, थिन होती जा रही है, जिसकी वजह से वो वीक हो रही है, लंबी ग्रो होने की वजह से, और स्टेराइल है, वो बार बार ऐसे गिर रही है। तो बोला गया कि इस सीडलिंग को, इस प्लांट को कोई डिजीज़ हो गई जिसमें प्लांट थोड़ा फुलिश हो गया है, तो उस डिजीज़ का नाम दिया गया बैकेन डिजीज़ और फुलिश डिजीज़ ऑफ राइस, इन विच द प्लांट, राइस प्लांट एक्सेसिवली टॉल ग्रो हो गया था और वीक और स्टेराइल हो रहा था। ये जो हार्मोन है आपको प्लास्टिड्स में मिलता है प्लांट की। इसका प्रिकर्सर है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल से ये हार्मोन बनता है। इसका बायो एसे का नेम है इंडक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज इन बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम। जिब्रेलिक एसिड के एप्लीकेशंस ऑफ फिजियोलॉजिकल रोल, bolting internodal elongation. Now see, supposedly you have a cabbage or cauliflower, broccoli,
जिन भी प्लांट्स में रोजेटे हैबिट होती है, रोज जैसी हैबिट होती है, इन प्लांट की अगर आप स्टेम को एक साइज इंक्रीज करते हो तो वो जो ऊपर की आपको कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज है, उसका साइज भी इंक्रीज करता है। ग्रेप्स की बात करते हैं। इस तरह से ग्रेप्स होते हैं। अगर मैं इस वाले स्टेम का साइज इंक्रीज कर दूं तो इस पर्टिकुलर ग्रेप को ग्रो होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगी, तो उसका साइज भी इंक्रीज होगा। तो जिबरेलिक एसिड का काम है इंटरनोडल एलोंगेशन कराना। दो नोड्स के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटरनोड। तो ये इंटरनोड में एलोंगेशन कराता है, जिसकी वजह से रोजेटे हैबिट के प्लांट्स की भी साइज इंक्रीज होता है। अगर कोई प्लांट जेनेटिकली ड्वार्फ है, जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल टी है, इस प्लांट को आप जिबरेलिक एसिड से स्प्रे कर दो इसके ऊपर, तो ये प्लांट टॉल हो जाएगा, बट इसका जेनेटिक्स अभी चेंज नहीं हुआ है। तो इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, इसके जो गेमीट्स होंगे, वो स्मॉल टी बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसके फर्दर ऑफस्प्रिंग से टॉल आएंगे, ऐसा नहीं होगा। वाई? बिकॉज यू हैव जस्ट चेंज इट्स फिजियोलॉजी, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आपने चेंज नहीं किया। तो ओवरकमिंग जेनेटिक ड्वार्फिज्म, तो जिबरेलिक एसिड कुछ प्लांट्स का जेनेटिक ड्वार्फिज्म, जो जेनेटिकली ड्वार्फ है, प्लांट छोटे हैं, उस जेनेटिक ड्वार्फिज्म को ओवरकम करने में हेल्प करता है। सो फॉर एग्जांपल इन मेज, पी, विक्सिया फाबा बीन्स, इट इम्प्रूव्स यील्ड्स इन शुगर केन जितना लंबा होगा उसमें उतना ज़्यादा शुगरी कंटेंट होगा। भाई लेट्स से अगर इतना एरिया है, उसमें आप इतना छोटा शुगर केन ग्रो करो या इतना बड़ा शुगर केन ग्रो करो, इस एरिया में लेट्स से 20 शुगर केन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर शुगर केन का साइज छोटा होगा तो आपको शुगरी कंटेंट कम मिलेगा, और अगर सेम शुगर केन इज टॉल इनफ, सो इट विल गिव यू मोर शुगर यील्ड, सो शुगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। सो सिमिलरली इट इम्प्रूव्स द यील्ड इन शुगर केन। तो यहाँ पर जिबरेलिक एसिड अगर आप स्प्रे कर दो शुगर केन पे, तो शुगर केन का साइज इंक्रीज हो जाएगा एंड यू विल गेट मोर शुगर कंटेंट। इट इम्प्रूव्स द शेप इन द एप्पल, इम्प्रूव्स यील्ड और प्रोडक्शन इन ग्रेप्स। मैंने अभी आपको ग्रेप्स का एग्जाम्पल समझाया था कि अगर यहाँ पे इंटरनोडल एलोंगेशन हो जाएगा तो ग्रेप का जो फ्रूट का साइज है वो इम्प्रूव होगा बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ग्रेप का स्टॉक्स। ग्रेप की स्टॉक्स का साइज इंक्रीज करने से यू विल हैव अ मोर राउंडर, मोर बिगर, मोर you can say fleshy, increased size of a fleshy fruit of grape. Okay, moving ahead. Next hormone we are going to discuss is cytokinin. Cyto is the cell, kinin means division, kinesis word से derive हुआ है। तो ये जो हार्मोन है, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इस हार्मोन का मेन फंक्शन है सेल डिविजन। ये सेल डिविजन में हेल्प करता है। F. Skoog and his co-workers found tobacco callus proliferated when oxygen is added with coconut milk and yeast extract DNA. See, callus क्या होता है? टोबैको का इन्होंने क्या किया था, एफ स्कूग एक साइंटिस्ट थे, उनके साथ उनके कुछ को-वर्कर्स ने काम कर रहे थे। लैब में उन्होंने देखा कि उन्होंने टोबैको का एक छोटा सा पार्ट, टोबैको प्लांट का छोटा सा पार्ट को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा। उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनिन है, मतलब ऑक्सीजन के साथ यीस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क है एंड दे कंटेन साइटोकाइनिन। ठीक है, सो टोबैको की क्या जो पार्ट है, टोबैको का जो एक्सप्लांट है, इट प्रोलिफरेटेड, डिविजन हुई इसमें, और ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन जाता है। इसको हम बोलते हैं कैलस। मतलब अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ रूट स्टेम लीफ में, अभी एक मास ऑफ सेल्स है जो अभी अनडिफरेंशिएटेड है, इसी को हम बोलते हैं कैलस। तो इन्होंने देखा, एफ स्कूग एंड को-वर्कर्स ने, कि टोबैको की कैलस में डिविजन हो रही है, सेल्स फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, उसका कैलस का साइज बड़ा हो रहा है। जब ऑक्सीजन को
when auxin was added with coconut milk and yeast extract DNA. Miller et al. At all का मतलब यहाँ पे होता है कि there are other scientists involved with Miller. So Miller, along with the other scientists, discovered the first cytokinin from the degraded product of autoclaved herring sperm DNA. Herring is a organism. उसके sperm के DNA से, उसके autoclaved sperm के DNA से, they isolated this first cytokinin. ये हार्मोन जो है ये आपकी रैपिड सेल डिवीजन वाले रीजन में मिलेगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम वाले रीजन में मिलेगा, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, ग्रोइंग बड्स, यंग फ्रूट्स, जहाँ पे बहुत एक्सेसिवली ग्रोथ हो रही है वहाँ पे आपको ये हार्मोन मिलेगा, बिकॉज दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन. इस हार्मोन का प्रिकॉर्सर है ट्रांसफर आरएनए. दिस हार्मोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसफर आरएनए. बायोएसे की बात करते हैं तो क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम. फिजियोलॉजिकल रोल एंड इट्स एप्लीकेशन. अभी आपको मैंने बताया कि दिस हार्मोन हेल्प्स इन द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस. ऑक्सिन was responsible for apical dominance. So suppose you have a plant जिसकी apex dominate है, dominate कर रही है because of auxin. इस प्लांट पे आपने साइटोकाइनिन स्प्रे कर दिया, स्प्रेड साइटोकाइनिन. तो अब एपेक्स डोमिनेट ना करके देयर वुड बी ब्रांचिंग. सो इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस. तो मतलब ये ऑपोजिट काम कर रही है एज कंपेयर टू ऑक्सिन इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इन दिस पर्टिकुलर रोल. सो इट इज एंटागोनिस्ट to auxin in this particular role or function. It promotes nutrient mobilization, helps in delay in leaf senescence. अब अगर कोई लीफ के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे तो वो ओल्ड एज की तरफ अप्रोच करेगी, विथड्रॉ कर जाएगी. तो ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बढ़ाते हैं जिससे कि लीफ की ओल्ड एज डिले हो जाए, वो लंबे टाइम तक यंग रहे. इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रिचमॉन्ड लैंग ने. It's the name of the scientist. That is why it is also called as Richmond-Lang effect. It promotes opening of stomata. The cytokinin is responsible for the opening of stomata. टिश्यू कल्चर में अगर आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन डाला तो रूट और शूट डिफ्रेंसिएशन होता है. बट अगर ऑक्सिन का अमाउंट कम है और साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा है तो शूट डिफ्रेंसिएशन होगा. और अगर ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा है और साइटोकाइनिन का कम है तो रूट डिफ्रेंसिएशन पहले होगा. सो दिस वाज अबाउट द साइटोकाइनिन. द नेक्स्ट हार्मोन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इथाइलिन. इथाइलिन इज द गैसियस हार्मोन. अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आपका एक फ्रूट अगर ख़राब है, लेट्स से बहुत ओवर राइपन्ड है, तो अगर आप उसको फ्रेश फ्रूट्स जो अनराइपन फ्रूट्स हैं उनके साथ रख दोगे तो वो भी राइपन हो जाते हैं. वाई? दिस इज़ बिकॉज कि राइपन फ्रूट्स में से एक हार्मोन रिलीज होता है जो गैसेस फॉर्म में रिलीज होता है. उस हार्मोन का नाम है इथाइलिन और ये इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो लेट्स से अगर आपका एक बनाना लेट्स से राइपन बनाना है और आपके बहुत सारे मैंगोज अनराइपन है, तो आप अनराइपन मैंगो के साथ ना राइपन बनाना रखिए, उसको कवर कर दो. एक आध दिन में, in a day or two, you'll find that all your mangoes have been ripened. Why? Because the ripened banana have released the ethylene hormone, because of which there is the ripening of mangoes as well. So this was discovered by Cousins and it was confirmed that ripened oranges एक volatile gaseous hormone release कर रहे हैं जिसका नाम है ethylene. ये हार्मोन आपको कहाँ मिलता है? It was found in almost all the parts of the plant, like roots, leaves, flowers, fruits and seeds.
इसका प्रिकर्सर है मीथेनिन, मीथेनिन से ये हार्मोन बनता है। इसका बायो ऐसे है ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। ओके, इसके फिजियोलॉजिकल रोल एंड एक्टिविटीज की बात करते हैं। सो इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग, आई जस्ट टोल्ड यू। ये ओल्ड एज को प्रमोट करता है क्योंकि हमने देखा था इथाइलिन इज अ ग्रोथ इनहिबिटर एज वेल, प्रमोटर भी है इनहिबिटर भी है। तो ये ओल्ड एज को प्रमोट करता है, जल्दी ओल्ड एज लाता है। एब्सेशन कराता है लीव्स और फ्लावर्स का, फ्लावर्स और लीव्स को गिराता है, विदर ऑफ कराता है। इट ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी, अगर कोई सीड और बड जर्मिनेट नहीं कर रही, डॉर्मेंट है, तो उसको ब्रेक करता है क्योंकि ये ग्रोथ प्रमोट भी करता है। इट इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, तो फ्लावरिंग पाइनएप्पल में इनिशिएट कराता है और फ्लावरिंग ऑफ फ्रूट सेट सिंक्रोनाइज रहे, पहले फ्लावरिंग हो फिर उसी में ओवरीज फ्रूट में कन्वर्ट हो, तो इस सिंक्रोनाइजेशन को भी इथाइलिन देखता है। So we have completed with ethylene and now we are going to discuss about abscisic acid. Yes, abscisic acid is abbreviated as ABA. During mid-1960s, 3 अलग-अलग साइंटिस्ट अलग अलग प्लेसेस में 3 रिसर्चर्स वो वर्किंग ऑन अ स्ट्रेस हार्मोन, जो जब प्लांट के आसपास कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो प्लांट उस स्ट्रेस कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए अपने अंदर एक हार्मोन रिलीज करता है. So that hormone is released during the stress condition, so it is called as stress hormone. The 3 different scientists or researchers in different places were working on this stress hormone. One scientist named it as inhibitor beta, other named it as abscission 2, and third one named it as dormin. Later on, it was found that all 3 hormones are same, and it is the same hormone which is performing the same function, which is released during the stress condition and helps the plant to tolerate those stress conditions, and that hormone was named as abscisic acid. ये आपको डॉर्मेंट बड्स और सीड्स में मिलेगा, जहाँ बड्स और सीड्स जो जर्मिनेट नहीं कर रही हैं, रेस्टिंग फेज में है, उनमें आपको ये हार्मोन देखने को मिलेगा. इसका प्रिकर्सर है वायोला xanthin. इसका बायो ऐसे है कॉटन एंड बीन एक्सप्लांट टेस्ट. ये हार्मोन जनरली इसका काम है ग्रोथ को इनहिबिट करना. ये सीड्स में ग्रोथ सीड्स में जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है. Abscisic acid stimulates the closing of stomata. Which hormone was stimulating the opening of stomata? Cytokinin. तो closing of stomata abscisic acid करा रहा है. So it is antagonist to cytokinin, which was responsible for opening of stomata. Okay. ABA बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वैसे तो ये स्ट्रेस हार्मोन है, बट इट हैज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, सीड की मैचुरेशन और उसकी डॉर्मेंसी में. बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, सो नोट दिस डाउन. We have completed the theory part of this chapter. Now we are going to discuss some important questions. Let's do that. Fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of. We studied this in today's class कि fruit और leaf का early drop को delay कौन करता है? ऑक्सीजन डिले करता है, और जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो फ्रूट और लीफ का ड्रॉप भी ऑक्सीजन कराता है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. You are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. लैब कंडीशंस में आपको एक टिश्यू दिया गया है, एक एक्सप्लांट दिया गया है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो डिफ्रेंशिएट कर जाए, डिवाइड करे और पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट करे उसके सेल्स. Which of the following pairs of hormones would you add
to the medium to secure shoots as well as roots. तो आपको shoots भी बनानी है, roots भी बनानी है. तो आप किसका combination डालोगे? ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन. हमने आज ही क्लास में डिस्कस किया था. अगर ऑक्सीजन ज़्यादा डालोगे तो पहले रूट डिफ्रेंसिएशन होगा, और अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा डालोगे तो पहले शूट डिफ्रेंसिएशन होगा. ये दोनों हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन आप डालोगे तब आपका रूट और शूट दोनों का ग्रोथ होगा. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Avena curvature test is used for the bioassay 4. So हमने आज ही क्लास में डिस्कस किया था. You have to remember the name. ऑक्सीजन का bioassay is Avena curvature test. इथाइलिन का नहीं है, एब्सिसिक एसिड का नहीं है, जिब्रेलिक एसिड का नहीं है, इंडोल एसिटिक एसिड. It is a type of oxygen. So answer to this question is option number 4. Moving on to the next question. Which one of the following growth regulators is known as stress hormone? So we just now discussed that abscisic acid is the stress hormone जो प्लांट में स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, और ये उस स्ट्रेस कंडीशंस को प्लांट को टॉलरेट बनाता है कि वो स्ट्रेस कंडीशंस को वो टॉलरेट कर सके, उन्हें उनमें सर्वाइव कर सके. सो आंसर वुड बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर 1. Last question of the day. Which one of the following generally acts antagonist to gibberellic acid? So it's not the zeatin, cytokinin नहीं है, इथाइलिन नहीं है, इंडोल एसिटिक एसिड नहीं है, it is abscisic acid. Abscisic acid acts antagonist to gibberellic acid. Abscisic acid is growth inhibitor and gibberellic acid is growth promoter. So answer to this question is option number 3. So with this, we come to the end of this beautiful and this amazing session of yours, and we have completed almost all the chapters of class 11th and 12th of botany. If you have missed out anything, you please go back and check the recordings of the same. Wish you all the best for your NEET exam. I hope you all do wonders in your NEET exam and come out with the flying colors. All the best. God bless you all. Thank you.